25 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPP open. Minus 20 seconds. PS1 ignition RMS AM. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Synchronization main atto. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third stage काल समाप्त होने पर। normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है।
We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है, सफल लॉन्चिंग हो चुकी है और एक एक करके जो स्टेज हैं उन्हें कंप्लीट किया जा रहा है। 5 मिनट हो चुके हैं और अभी तीसरे चरण में है हमारा ये जो लॉन्चिंग है और इसकी एक एक स्टेज के बारे में वैज्ञानिकों की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि जैसा अनुमानित था, जैसा कैलकुलेशन किया गया था, उसी हिसाब से ये जो हमारा मिशन है वो लॉन्च हो रहा है। रिंटू जी, ये अगर आप हमें बता सकें कि इस वक्त ये क्या हो रहा है, एक एक स्टेप को कैसे फॉलो किया जा रहा है और कितने क्रूशियल हैं ये स्टेप? जैसे कि पहले से ही इसरो की तरफ से जो रिपोर्ट्स आए थे कि अबाउट 100 किलोमीटर के बाद इसके जो नोज कैप जो खोला जाएगा वही हुआ है अबाउट 118 किलोमीटर में। एंड ये इट विल अबाउट टेक अनदर और 1 घंटा तक चलने के बाद ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेंगे और उसके बाद जो है ये अर्थ का ग्रेविटी के साथ चलते रहेंगे हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जिसकी मिनिमम रेडियस होगा अराउंड 200 किलोमीटर और मैक्सिमम होगा अराउंड 15,000 किलोमीटर। तो वो लोअर ऑर्बिट बोलेंगे एंड उसके बाद मैन्यूवरिंग करते रहेंगे। इसका जो आदित्य जो स्पेस क्राफ्ट है, इसके जो बूस्टर्स लगे हुए हैं, उसके बाद अपर ऑर्बिट में जाएंगे 4 बार घूमने के बाद। द 5th में इसका स्लिंग शॉट होना है। सो इट विल टेक अबाउट अनदर about 2 weeks time or more than that, and then it will go for a cruise mode towards the L1 point. अभी तो इट इज़ एज पर द कैलकुलेशन जो दिखा रहे हैं, इसकी जो नोज कैप खोलने का टाइम बिल्कुल सही टाइम में जैसे कैलकुलेट हुआ था 118 किलोमीटर में, ऐसे ही हुआ है। बिल्कुल जैसा अनुमान लगाया गया था, जैसे कैलकुलेशन की गई थी वैज्ञानिकों की तरफ से, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो हमारा आदित्य L1 है वो आगे बढ़ रहा है। साइंटिस्ट के खिले हुए चेहरे बताने के लिए काफ़ी हैं कि उनकी एक एक कैलकुलेशन एकदम सटीक साबित हुई है और एक एक स्टेज जैसे जैसे पार कर रहा है, एक एक स्टेप जैसे जैसे पार कर रहा है आदित्य L1, वैसे वैसे ये जो खुशी है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर सौम्य दत्ता, आप भी ज़रा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये समझा पाएं कि दरअसल हो क्या रहा है, हर एक स्टेज पर ये क्लैपिंग क्यों हो रही है और हर एक स्टेज जो है वो इतनी क्रूशियल क्यों? देखिए, हर एक स्टेज मतलब एक तो पहला जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स थे वो सॉलिड फ्यूल बूस्टर है, उसको सही टाइम में यदि अलग नहीं कर पाएंगे, जो बोलते हैं हम डेड वेट, मतलब वो वेट रह जाएगा, उसके कोई थ्रस्ट नहीं रहेगा, फोर्स नहीं रहेगा, तो जो पूरा जो रॉकेट है उसको वेलोसिटी कम कर देगा। इसीलिए सही समय में जो 4 बूस्टर को अलग किया गया वो बहुत क्रिटिकल है। फिर हर एक स्टेज, जो स्टेज 1, स्टेज 2 रॉकेट जब हम ऊपर भेजते हैं, इसीलिए स्टेज किया जाता है क्योंकि आप जिसका फ्यूल खत्म हो गया, प्रोपेलेंट खत्म हो गया, उसको सिर्फ केसिंग का भार लेके अब आगे चलेंगे तो आपको रॉकेट स्लो हो जाएगा, ज़्यादा पावर लगेगा। इसीलिए हर स्टेज में कैलकुलेटेड पॉइंट में जो आप मैंने हिसाब किया, उसी पॉइंट में उस स्टेज को अलग कर देने से तभी आपको सही ट्रैजेक्टरी में चल पाएगा। और जब तक ना जो आदित्य स्पेसक्राफ्ट है, L1 का जो स्पेसक्राफ्ट है वो अपने आप में आ जाएगा, जो लॉन्च होगा उसका डिजिग्नेटेड ऑर्बिट जो है बहुत ही इलिप्टिकल ऑर्बिट, माने वो सर गोल नहीं होगा, माने एक साइड में धरती का बहुत नज़दीक होगा 230-35 किलोमीटर, एक साइड में शायद 19,000 से भी ऊपर होगा, 19,500 के आसपास। तो उस पीरियड में तब आपको लॉन्च करेगा। इसके बीच में हर एक स्टेज का, जिस मैंने बोल रहा था, कहीं में यदि मानिए 10 सेकेंड का अंतर हो जाए, जो जिस स्टेज में स्टेज को सेपरेट करना है 10-12 सेकेंड का अंतर हो जाए तो ट्रैजेक्टरी बदल जाएगा, तो फिर आपको एक्स्ट्रा फ्यूल बांध करके उस ट्रैजेक्टरी को करेक्ट करना पड़ेगा, तब बाद में फ्यूल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हर एक स्टेज को सही टाइम पे सही ऑल्टीट्यूड, मोर और लेस उस ऑल्टीट्यूड में, ऐसे नहीं है 118 है तो 118 में ही करना है, हाँ, वो उस स्टेज में आके खत्म करके उसको सेपरेट करना है। तो हर एक स्टेज इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटेड है। दिनेश जी, असल में अभी क्या है, देखिए आप साइंटिस्ट वहाँ सब बड़े टेंशन में है। हमारा जो एम है उसको अगर ऑर्बिट में जाना है तो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए एटलीस्ट 10.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अभी 4.9 हो चुका था। तो जो आखिरी स्टेज है, पहला स्टेज सॉलिड, दूसरा स्टेज लिक्विड, थर्ड स्टेज फिर सॉलिड, और ये जो लास्ट स्टेज है 10 मिनट तक चलता है, 10-12 मिनट तक एक्चुअली करता है। बाकी तो फर्स्ट स्टेज 2 मिनट का है
सेकंड स्टेज 3 मिनट का है। ऐसे मिलाकर कुल करीब 15-18 मिनट लगता है, जो मैक्सिमम देर तक करता है। इसको जो 175 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ले जाते हैं, और तब तक जो वेलोसिटी है वो करीब 4.2-4.5 तक पहुंचती। जो लास्ट स्टेज है उसका काम है वेलोसिटी को दुगना, लगभग दुगना करना, 10.2। मतलब ये मान लीजिए कि जो पहला वाला स्टेज है जिसमें स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगा वो हाथी है, पहला और दूसरा ये हाथी है। जो आखिरी स्टेज है वो चीता है। चीता जो है उसको बहुत तेज स्पीड, वो एल्टीट्यूड नहीं इंक्रीज करता, वो हाइट नहीं इंक्रीज करता है, वो वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ऐसा पहले कभी हुआ है कि जब हमारे जैसे 99% सक्सेस रहा, 1% फेलियर में क्या हुआ था? 627 seconds from the launch. वो For another she is announcing 600 the more velocity she has to seconds or tell. so we will be getting tracking data from the Biax ground station. तो अभी वो चल रहा है ना, वो 4th स्टेज है। वो वेलोसिटी जैसे पकड़ेगा वो उसके अंदर ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्बिट में रहने के लिए एक वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। अगर 10.2 से है तो वो कुछ दिन बाद नीचे आ जाएगा। वो जब तक नहीं अचीव होता तब तक देखिए टेंशन है। अब तक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे इन्होंने बताया कि अगर आपका बाय द वे अगर फर्स्ट स्टेज सेपरेट नहीं हुआ या सेकंड स्टेज सेपरेट नहीं हो तो उसके पीछे नोजल है, वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। एक फेलियर का कारण ये हो सकता है कि सेपरेशन अगर नहीं होता है तो एक मिला जी, क्या ये जो जितनी भी स्टेज हैं सबके जो टाइम है वो पहले से कैलकुलेटेड होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं? ये सारे जो आपको भी स्क्रीन में दिखाया जा रहा था कि हर स्टेज जब तक लो अर्थ ऑर्बिट पे इंसर्शन होगा, ये सारे स्टेज एकदम कैलकुलेटेड है, और डिस्टेंस, स्पीड और किस डिस्टेंस पे जाके या किस टाइम पे जाके वो स्टेज निकाला जाएगा। हर पॉइंट कैलकुलेटेड है, और एक टेबल भी दिया गया है, और वो भी टेबल भी बार बार दिखा रहे हैं कि हम इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं, इस हाइट तक पहुंच गए हैं, और इस टाइम तक पहुंच गए हैं। तो इसलिए जो दर्शक है उनको सारे दिखाई देंगे कि अब कौन सा स्टेज आने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपने देखा होगा कि जब वो लॉन्च पैड पे है तो बिल्कुल वर्टिकल दिखाते हैं उसको। एक्चुअली उसकी ट्रेजेक्टरी वर्टिकल नहीं, वो सीधे तेजी से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि उसको घूमना है, 90 डिग्री पे टर्न मारना है, तो उसको बोलते हैं कि पिचिंग। उसके अंदर थ्रस्टर्स लगे रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या कहते हैं, हमारे पास हैंडल तो नहीं है, स्टीयरिंग जो उसकी होती है रॉकेट की उसको थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल बोलते हैं। तो वो यूं करके ऐसे करके टर्न मारता और गोलाई वाले ऑर्बिट में आने की कोशिश करता है। तो ये जितने के जितने हैं, जैसे मैंने भी इन्होंने बताया कि दी प्रिडिक्टेड, ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो प्रिडिक्टेड दिखा रहा है, वो जो लाल रंग का आपको दिख रहा है ना, वो प्रिडिक्टेड है, वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। अगर आप वहां ग्राफ में देखेंगे, जो ग्रीन है वो एक्चुअल है, उसके ऊपर जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो बता रहे हैं कि मेरी पोजीशन ये है रॉकेट के। हाँ, मैं ये वाला डायग्राम आपको कह रहा था, अगर बाद में आप मुझे दिखाते हैं यहाँ पर, देन इट विल बी वेरी इजी टू एक्सप्लेन टू एवरीवन व्हाट इट इज। ये लाइव स्ट्रीमिंग है श्रीहरिकोटा से, ये इसरो की तरफ से दिखाया जा रहा है जो तमाम तस्वीरें हैं। लेकिन अभी जो ग्राफ रिंटू जी दिखाई दे रहा था, ग्रीन लाइन और रेड लाइन हमें नजर आ रही थी, इसका मतलब ये कि जो रेड लाइन हमने सोचा था कि इस पाथ पर जाएगा वो उसी पाथ पर जा रहा है, जो ग्रीन लाइन है वो इसी तरफ इंडिकेट कर रही है। जी, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, इसके जो डेटा आ रहे हैं उसके हिसाब से वो ग्रीन डॉट्स आते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज जो आने जा रहा है वो इजेक्शन स्टेज, जहाँ पे जो स्पेसक्राफ्ट को इजेक्ट किया जाएगा, एंड इट विल बी अबाउट 56 मिनट टाइम उसके बाद होना है। एंड उस टाइम में पर्टिकुलर वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी एग्जैक्टली वो होने के बाद ही वो इजेक्ट होगा। उसके बाद दैट विल बी ऑन इट्स ओन, एंड देन इट विल बी हैविंग दिस लोअर अर्थ ऑर्बिट में रोटेट करते रहेंगे आदित्य L1। वो पर्टिकुलर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम में वो कितनी डिस्टेंस पे है अर्थ से, उस टाइम में उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है वो कैलकुलेट करने के बाद ही वो इजेक्शन होती है। इसलिए इजेक्शन के टाइम में ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये कोई भी एक स्टेज में आ सकते हैं जिसमें वो एग्जैक्टली रेडियस कैलकुलेट होती है, देन इजेक्ट होती है। उसके बाद इट विल बी हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, जो लोअर मोस्ट होगा अबाउट 250 किलोमीटर एंड अपर मोस्ट होगा अराउंड 19,500 किलोमीटर, उसके बाद तैयार होती है। सौम्य जी, हम दो लाइन देख रहे हैं इस ग्राफ में, वो ग्राफ इसरो की तरफ से दिखाया जा रहा है, ये तो डायग्राम है। वो जो ग्राफ में दो लाइन देख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक जिसपे वो पाथ चलता हुआ नजर आ रहा है, ये दोनों लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? एक पे तो पाथ समझ में आ रहा है कि हमारा रॉकेट कैसे बढ़ रहा है, ये जो ऊपर वाली लाइन है लाइव स्ट्रीमिंग है,
ये तो आपको L1 पॉइंट और L2 पॉइंट दिखाया जा रहा है, ये नहीं है। एक्चुअली जो लोअर पॉइंट है, लोअर लाइन है, वो एक्चुअल पॉइंट्स है। जो ग्रीन लाइन जो है वो आप देखेंगे बढ़ते जा रहा है रेड लाइन से। वो एक्चुअल ट्रैजेक्टरी क्या है और जो कैलकुलेटेड क्या हुआ, ये डायग्राम नहीं है, इसको चेंज करना इसको भी ऊपर जो पिन है ना, दैट ग्रीन लाइट इज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, इज अ लास्ट बाहर चले जाएगा, दैट इज द लास्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट व्हिच इज परमिसिबल पॉसिबल मैन्यूवर करने के लिए। जो ऊपर का एकदम ग्रीन लाइन जैसे ऊपर जाके जैसे रेक्टेंगुलर ऐसे आ रहा है ना, दैट इज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट। उसके बियॉन्ड चले जाए तो कंट्रोल में नहीं आते। तब तक वो क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अगर आपकी स्पीड 10.2 के बाद अगर 11.2 से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्रह्मांड में कहीं चला जाएगा, यू विल हैव नो कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एस्केप। हर वेलोसिटी की हर ऑर्बिट की एक वेलोसिटी होती है, एक जो मिनिमल ऑर्बिट होती है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे है ना ये LAM, ये जो मोटर है उसको अपोजी बूस्ट मोटर बोलते हैं, वो वेलोसिटी को बढ़ा के ऑर्बिट रेजिंग करती है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कर दोगे, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा अगर हो जाती है तो देन यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू विल, वो एस्केप कर जाएगा। अच्छा रिंटू जी, आप जरा स्क्रीन पर आए, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव तस्वीरें हैं, तस्वीरें बार बार बदल रही हैं, तो एक एक तस्वीर के मायने क्या हैं और इस तस्वीर से हम क्या समझेंगे? गोल्डन तो नजर आने लगा। दिस इज द स्पेसक्राफ्ट, दिस इज द स्पेसक्राफ्ट व्हिच इज, दिस इज द टॉप व्यू, सो दिस इज द रॉकेट बिलो PSLV एंड दिस इज द टॉप व्यू। ये नोज कैप के ऊपर है, नोज के ऊपर है, ये इसका इजेक्शन हुआ नहीं अभी तक। ये रॉकेट है और ये आदित्य L1। हाँ, दिस इज ऊपर में अटैच्ड है, अभी इसको निकाला नहीं गया। हाँ देखिए बार बार चूंकि तस्वीरें बदल रही हैं, इसी yes, this is the calculated part, this is actually which is going now, this is actually going, but this you are talking about this green जो लाल से अलग हो रहा है, जो है this is a threshold point, उसके beyond at any time चले जाए, so it will not be able to control this trajectory को control में नहीं आ सकते, otherwise thrusted देके boost करके it even at this range these are all actually allowable range, उसके अंदर रह सकते हैं। so even if we now we see थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, दैट इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, बिकॉज वहां तक जा सकते हैं। यानी जो वो लाइन है वो आप उसे बाउंड्री कह सकते हैं, उसकी सीमा। दीज आर द ऑल द योर पेलोड्स, दीज आर द पेलोड्स, दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट VELC, there is visible emission line coronagraphy, this is the perhaps the all are important, perhaps the most important is this। एक करके जो हम पेलोड बता रहे हैं, रिंटू से जरा हिंदी में बताइएगा, ये पेलोड शब्द का इस्तेमाल तो कर रही, करेगा क्या, ये होता क्या है? पेलोड जो है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स को जो रॉकेट को ऊपर लगाए जाते हैं उसको पेलोड बोलते हैं। लोड, द लोड जो रॉकेट को दे रहे हैं, जो रॉकेट जिसको लेके जा रहे हैं, सो एंटायर यू नो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स साथ मिल के एक साथ बोलते हैं पेलोड। उसकी टोटल वजन जो भी है उसको पेलोड बोलेंगे। VLC है, देन SUIT, there will be some SUIT, yeah, this one, solar ultraviolet imaging telescope, these two are complementing each other, one is corona को guard करके लेंगे फर्स्ट VLC, and the second one ultraviolet range को लेंगे। ये एक एक पेलोड की जानकारी है जी। this is solar low energy X-ray spectrometer, and there is also one high energy spectrometer, that is solar ultraviolet imaging telescope. This is actually X-ray range imaging of suns. No, this is ultraviolet. This is another one. No, I was talking about the X-ray one. Suit already I said. I think changing so many times. Okay. See, this is low. I was talking about this one. This this low energy. लाइव स्ट्रीमिंग है, तो ये बार-बार बदल रहा है। Right. I know. I can. It's not in your control. And there is also high energy X-ray spectroscopy. So there are two spectroscopic analyzer. And these are spectroscopy. The plasma. This is what is actually the particle analyzer. This another is PAPA. Where is this? Yes, PAPA. This one. This is a particle analyzer. Some for Aditya. Package of Aditya. Yeah. Some particle analyzer. पापा ये करेगा क्या ऊपर जाकर? दिस इज पार्टिकल एनालाइज, जो सन से जो पार्टिकल्स, चार्ज आयनाइज्ड पार्टिकल्स आते हैं, उसकी इंटेंसिटी, वेलोसिटी, पीरियोडिसिटी, ये सारे चेक करने के लिए ये पार्टिकल एनालाइजर है। 2 पार्टिकल एनालाइजर है वहाँ पे। सौम्य जी, एक एक करके जो ये पेलोड की जानकारी आ रही है और इस पेलोड के बारे में इसरो की तरफ से भी बताया जा रहा है, ये पेलोड कितने जरूरी हैं, या पेलोड को आसान भाषा में अगर आप कन्वर्ट करें दर्शकों के लिए, क्या करेंगे ये ऊपर जाकर? ये ऊपर जाके इसमें तो बाकी सारे अभी ऑफ रहेगा,
सिर्फ एक, जब वो क्रूज मोड में जाएगा, मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बैठ के बोलिए। जब ये एक ही खाली जब क्रूज मोड में चला जाएगा तब जो पार्टिकल जो एनालाइजर है वो सिर्फ चालू रहेगा। बाकी 6 जो पेलोड है वो तब चालू होगा जब वो L1 का एक्सप्रेस में हेलो ऑर्बिट में आएगा, तो जनवरी महीना में जाके पहुंचेगा, उसके बाद टेस्टिंग होगा, तब जाके खुलेगा। ये जो करेगा एक एक इंस्ट्रूमेंट, पेलोड मतलब एक एक यंत्र मानिए, एक एक चीज को समझने के ग्राउंड लिए। ट्रेस क्योंकि जल्दी से बदल जाएगा, ये ग्राउंड ट्रेस का मतलब आपको ग्रीन जो है वो लाल से डिविएट कर रहा है, तो उनको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन करता है। जो मैंने पहले बोला था कि एक लिमिट है, जो रेंटोनाथ भी बोले, एक लिमिट है, उसके इधर उधर जब जाएंगे तब आपको जो प्रोपल्शन जो कर रहा है उसको थ्रस्टर को चेंज करके आप करेक्शन कर सकते हैं। वेलोसिटी 7.14 लिमिट के बाहर नहीं गए, उस लिमिट के बाहर जाएंगे तो कोई अलग ऑर्बिट में चले जाएंगे। एट दिस स्टेज यहाँ तक है अभी। तो देखिए एक एक तस्वीर जो है इसरो की तरफ से साझा की जा रही है, और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग अभी बता रही है, जो ग्राफ अभी बता रहा है, वो क्या बता रहा है सौम्य जी? जो सोचा था उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है या पाथ चेंज हो रहा है? उससे थोड़ा सा हायर वेलोसिटी लिया है, जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो उससे थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी है, ये दिखा रहा है। तो अभी ये बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है, इसको डेविएशन एनोमली जो भी बोले। ये ग्राफ क्या है? ग्राउंड ट्रेस क्या है? ये जो जा रहा है अभी, ओके। और ये तो ग्राउंड का तरफ जो आएगा वो तो ये नहीं है, वो बूस्टर्स जो गिरेगा वो अलग है। जो बूस्टर्स सेपरेट हो गया वो एक ऑल्टीट्यूड से फिर नीचे आएगा और बे ऑफ बंगाल में क्या बोलते हैं, बंगाल का खाड़ी में गिरेगा, तो वो अलग है। ये है एक्चुअली आदित्य का पोजीशन। दिस इज गोइंग अ बिट अप, देखिए वो ज्यादा वेलोसिटी, बट दैट इज द थ्रेशोल्ड, सो इट कैन स्टिल आसान भाषा में समझे कि या इस वाली लाइन से ऊपर ये नहीं जाना वहाँ चाहिए, पे जाना नहीं चाहिए, तब कंट्रोल में नहीं अगर बहुत ज्यादा जाएगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए देखिए वो वैज्ञानिक सबकी सांस रुकी हुई है, तो मुस्कुराहट आप जो दिखा रहे थे ना, किसी के चेहरे पे उनका पसीना निकल रहा है। अभी वो फाइनल पॉइंट बाकी है जो हमारे सक्सेस के लिए, वो स्पीड कंट्रोल होना चाहिए ताकि लो अर्थ ऑर्बिट में इंसर्ट हो पाए। लेकिन क्या है, हायर वेलोसिटी इज एक्सेप्टेबल, वो ठीक कंट्रोल कर लेंगे। अगर लो वेलोसिटी है तो धरती पे वापस आ जाएगा, तो दोनों ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये इसको कंट्रोल कर लेंगे। वो करेक्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को करेक्ट करने के लिए आपको फ्यूल स्पेंड करना पड़ेगा। उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट फ्यूल और प्रोपेलेंट, जो भी फ्यूल बोले रॉकेट की भाषा में प्रोपेलेंट बोलते हैं, वो लिमिटेड अमाउंट है। यदि आपको ज़्यादा यहाँ खर्चा करना पड़े करेक्ट करने के लिए, तो आपको जब जाके फिर ऑर्बिट लॉन्च करना है, जो 19,500 और 235, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस लिमिट के अंदर रहना है। ये होता है, इस लिमिट के अंदर आप थोड़ा बहुत करेक्शन, अब ज़्यादा वेलोसिटी हो गया करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा कम हो गया तब भी करेक्ट। एग्जैक्टली क्या रहा है श्रीहरिकोटा में, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी टी राघवन से हम कनेक्ट हो चुके हैं। राघवन, क्या बता रहा है फिलहाल अभी तक जो ग्राफ दिखा रहा है? क्योंकि ग्राफ में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो डॉट है वो ऊपर नीचे हो रही है, जो तय पाथ था। अभी वैज्ञानिकों का क्या कहना है? देखिए जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो चिंता वाली बात नहीं है। उनका ये कहना है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अभी हम फेज 4 जो है वो सबसे क्रूशियल फेज, इसको कॉस्टिंग फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबा ड्यूरेशन है। जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये एक ऐसा सिंगल सैटेलाइट मिशन है जिसमें 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। ये वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें वो इंटेंडेड ऑर्बिट लेनी है, जिससे हम आगे की यात्रा जो है 15 लाख किलोमीटर की उसे शुरू कर सकें। PS4 जो है वो लगातार अपनी जो तय माप के हिसाब से थोड़ा बहुत जो लिमिट है वो उसके अंदर रहते हुए अभी चल रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब PS4 स्टेज का पृथक्करण हो जाएगा, उसके बाद हमें वो इंटेंडेड 35 किलोमीटर गुणा 19,500 किलोमीटर की मिलेगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो कॉस्टिंग फेज है वो ऑन है। कॉस्टिंग फेज का मतलब ये होता है कि PS4 जो स्टेजेस होते हैं उसमें इंजन को 2 बार शट ऑफ किया जाता है, फिर शट ऑन किया जाता है। जिस तरह से वेलोसिटी बढ़ी हुई दिखा रही है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे ही शट ऑफ होगा इंजन, तो वो उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिरना शुरू होगा। उसके बाद वापस उसको उसी कक्षा में लेकर आ जाएगा, जिसकी इच्छित कक्षा जो इसरो ने प्लान की हुई है। तो हमें अब कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा जब PS4 स्टेज सेपरेट होगा। उस सेपरेशन की जो घोषणा होगी उसके साथ ही हम मान लेंगे कि जो हमारा आदित्य L1 सैटेलाइट जो है वो इंटेंडेड ऑर्बिट में प्लेस हो गया है। अभी राघवन, कितनी स्टेज क्लियर कर चुके हैं? क्या बता रहे हैं अंदर से साइंटिस्ट? क्योंकि बातचीत करते हुए हमें साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं उसकी स्पीड को लेकर, या जो ग्राफ जैसा आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर, क्या अंदर से जानकारी आ रही है आपके पास?
जी देखिए, अभी तक जो स्टेज 3 तक की परफॉर्मेंस की बात करें तो सब कुछ नॉर्मल रहा है। इस बात की घोषणा ही यहाँ पर की गई है, क्योंकि जो स्टेज 4 है वो काफ़ी लंबा है। जैसा हमने बताया कि उसमें उसको बहुत दूर तक जाना है। जो इंटरनेट ऑर्बिट है 19,500 किलोमीटर अधिकतम दूरी जो है उसको वो अचीव करनी है, इसलिए उसमें वो अभी क्रूज कर रहा है, तो उसको वक्त लगेगा थोड़ा सा उसमें स्टेज 4 की परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसकी घोषणा होने में। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो प्लान किया गया था उसके मुताबिक ये सारा प्रक्षेपण जो है वो चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और क्या पाथ रहेगा, कितनी वेलोसिटी है, इस पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। और आदित्य L1 को सफल बनाने के लिए जो वैज्ञानिक हैं उनकी मेहनत तो रंग लेकर आई रही है, लेकिन फिलहाल जो आप बता रहे थे कि वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई है और उसी को कम किया जा रहा है। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, आप जरा समझाइए, क्योंकि हम ग्राफ लगातार देख रहे हैं, उस ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर पाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है और जैसा राघवन बोल रहे हैं कि वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। क्या ये कोई परेशानी वाली बात है या इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा वक्त रहते? देखिए, एक्चुअली एट दिस मोमेंट तो ऑब्वियसली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और रही बात जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पॉइंट है जहां हम जाना चाहते हैं, तो वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं होता है। जैसे इसरो ने बोला 235 बाय 19,500, तो अपन चंद्रयान की भी बात करें तो वो एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे नहीं था, वो प्लस माइनस का थोड़ा चलता है। अगर बहुत ज़्यादा ही हम उस जो वो ग्राफ का पाथ उससे बहुत ज़्यादा ही डेविएट हो जाएं तब तो फिर भी कोई कंसर्न होता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं तो वो इन स्टेजेस के अंदर जो है वो वापस रिकवर करा जा सकता है, क्योंकि स्टिल ग्राउंड स्टेशन जो वेल कनेक्टेड है अभी वहाँ पे, मतलब अभी अपने ही कंट्रोल में है। ये स्पीड मैनेजमेंट कितना बड़ा फैक्टर है मनीष? में एक सेकंड आ रही है, ये जो स्पीड मैनेजमेंट है कितना बड़ा फैक्टर है? क्योंकि इसकी चर्चा हमने चंद्रयान 3 के दौरान भी की थी। अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, क्योंकि वहां तो हमें लैंडिंग करानी थी, यहाँ लैंडिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे हेलो ऑर्बिट में घूमना है, ये कितना जरूरी है, कैसे होता है? स्पीड का मेन रोल है कि स्पीड ये डिसाइड करती है कि जो ऑर्बिट में वो घूमेगा वो ऑर्बिट कौन सी होगी। तो हमने जो कैलकुलेशन करी है, तो हमें जो स्पीड चाहिए थी वो स्पीड है जो परफेक्टली उस ऑर्बिट में उसको स्टेशन करेगी, पार्क करेगी जिसमें हम जाना चाहते हैं। लेकिन अगर स्पीड उससे ज़्यादा है तो हमारी ऑर्बिट करेक्शन हमको करना पड़ेगा। लेकिन ऑर्बिट करेक्शन कोई बहुत बड़ा टीडियस टास्क नहीं है, मतलब ऑर्बिट करेक्शन, क्योंकि एनीवेज हम तो 4 ऑर्बिट करेक्शन वैसे भी करने वाले हैं। देखिए, ये चर्चा तो लगातार जारी रहेगी। मैं दिनेश जी आपके पास लौटूं उससे पहले, चूंकि ऑडियंस भी मेरे साथ है, इन तस्वीरों को देखकर उनके जहन में भी सवाल होंगे। मैं सवाल लेती हूँ। सवाल है किसी का? हाँ सर, मेरा सवाल आप सभी से है। सबसे पहले मुझे गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर और अपने देश पर कि उन्होंने ऐसा मिशन लॉन्च किया है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश कामयाब हो, आप सभी लोगों की मेहनत सफल हो। मेरा सवाल सर ये है, सर एक कॉमन क्वेश्चन है, जैसा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा आजकल है, पहले से ही चला आ रहा है, इसमें कुछ हम कामयाब होंगे इस मिशन को लेकर? ये ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो सूरज की वजह से हो रहा है, पहले अभी सूरज का टेम्परेचर दिन पर दिन, साल भर साल बढ़ता जा रहा है। कुछ गर्मी जो पृथ्वी पे आ रही है वो हमारी गलती नहीं है, वो सूरज हमको ज़्यादा हीट दे रहा। किसी ज़माने में जब क्या है, वहाँ पे फ्यूजन होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन फ्यूज होता है और वो हीलियम बनता है, तो एटम जो हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह वहाँ हर साल उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, वो ब्राइटर भी होते जा रहा है। तो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पे जो कार्बन एमिशन और बाकी हो रहा है वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सूरज के ऊपर तो हमारा कोई बस नहीं है। मैं एक पॉइंट और ज़रा बोलना चाहता इस बीच में, ये जो वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा जो हो गई है, क्या होता है, जो इसका 4th स्टेज है उसको ग्राउंड स्टेशन से या उसके अंदर जो लगा रहता है उसका जो इंजन है हम उसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी बहुत हो रही है तो हम उसका इंजन बंद भी कर सकते हैं। हमको क्या है, उसका जो फ्यूल कंट्रोल होता है, वॉल्व जो होती है, जो फ्यूल की जो वॉल्व्स होती हैं उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। दैट इज़ द एडवांटेज। एक सॉलिड वाला जो रोटर आपने देखा होगा, स्टेज 1 सॉलिड मोटर है, सॉलिड मोटर एक बार जलने लगा, जैसे वो दिवाली के पटाखे होते एक बार चलता तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे एक कार है, कार अगर जा रही है, अगर मान लो आप फ्लाईओवर पे जा रहे हैं और लेफ्ट राइट हो रहा बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो आप उसको क्या करते हैं, एक्सीलेटर को पीछे कर लेते हैं, मतलब कम फ्यूल देते हैं, तो वो ये कंट्रोल कर लेंगे। अभी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ साइंटिस्ट को डर लगता है ऐसा ना हो कि और ज़्यादा बढ़ जाए। तो और एक जो आप बता रहे थे, जो एक स्ट्रेट लाइन जो दिखा रही थी, आपने सवाल पूछा ये स्ट्रेट लाइन क्या है, उसको बोलते हैं डाउन रेंज।
श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से वो कितना दूर है। एक तो ऊंचाई हुई, उसका प्रोजेक्शन आप अगर नीचे करोगे तो अभी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर एज प्रोजेक्टेड ऑन द ग्राउंड, उसको डाउन रेंज बोलते हैं, वो दिखा रहा था। ठीक है मनीष, कितना डर होता है ऐसे वक्त में, जैसा अभी सर जिक्र कर रहे थे? देखिए एक्चुअली क्या ना, ये एक नई अपन ने कैपेबिलिटी जो है हासिल करी है, जब PSLV का 4th स्टेज है जिसको अपन मल्टीपल टाइम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनीवेज ये पूरा 1 घंटे का ड्यूरेशन है, 1 घंटा 3 मिनट बाद स्पेस क्राफ्ट सेपरेशन होगा। तो होगा क्या, अगर स्पीड जो है वो जैसा हम चाहते हैं अगर वैसी नहीं है, उससे थोड़ी ज़्यादा है, तो जो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि भाई हमें तकरीबन आई थिंक ऐसा होगा कुछ 1500-1600 सेकंड के बाद जो स्टेज का उसका चालू होना का जो पार्ट रहेगा, तो दे विल वेट एंड मॉनिटर कि उस वक्त हम ना चालू करें या फिर जब हम उसको चालू करें तो जो थ्रस्ट है उसको हम कंट्रोल करें, जिससे कि उस स्पीड को हम उसी रेंज में ले आएं। तो ये तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी चलेगी क्योंकि उनको पता चल रहा है अभी स्पीड क्या है। और अभी तो एक और बार स्टेज को फायर होना है क्योंकि अभी कोस्टिंग फेज चल रहा होगा और फिर सैटेलाइट सेपरेशन होगा। सैटेलाइट सेपरेशन होने के बाद जो PS4 बच जाएगा ना, जिस सैटेलाइट अलग हो जाएगा, उसके बाद इतना कंट्रोल भी रहेगा इसरो के पास कि जो बची हुई स्टेज है PS4 की, उसके अंदर अगर कोई फ्यूल बच भी गया तो उसको वहां पे उसको कहते हैं डीपैसिवेशन, यानी उस फ्यूल को वहां पर खाली कर दिया जाएगा स्पेस के अंदर, जिससे कि भविष्य में, क्योंकि फ्यूल मींस एनर्जी, तो ऐसा नहीं हो जाए कि भविष्य में वहां पर कुछ भी घटना हो और एक विस्फोट हो। तो ये कुछ नई चीजें जो इसरो ट्राई करता रहता है, तो मतलब अभी है अपने पास समय और वहां बैठे हैं तो देख रहे हैं कि वहां बैठे हैं और वो लगातार आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि तमाम एक्सपेरिमेंट हैं जो इसरो करता रहता है, नया आयाम जो है वो हमारे भारत के वैज्ञानिक छू रहे हैं और एक नए आयाम में एक कदम है ये आदित्य L1, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें समय लगेगा, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। उस मॉनिटरिंग की हर एक मिनट की जानकारी आपको इंडिया टीवी पर मिल रही है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, आपके सवालों का जवाब आसान भाषा में इंडिया टीवी पर। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया टीवी।